પરંતુ આપણે ક્યારેય પાર્લામેન્ટની અંદર જઈને જોઈ નથી શક્યા કે અહીંયા એક બિલ, એક કાયદો જ્યારે બને છે, ન્યાયતંત્ર એ કાયદાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે છે, ધારાસભા કાયદો બનાવે છે અને કારોબારીની અંદર કાયદાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવા માટેની પ્રોસિજર થાય છે. આપણી સરકારના 3 મહત્વના અંગો છે. એક ધારાસભા, બીજું કારોબારી અને ત્રીજું ન્યાયતંત્ર. આ 3ના કારણે જ આપણો દેશ આટલી સરસ રીતે, આટલી વિવિધતાઓથી ભરેલો દુનિયાનો એકમાત્ર દેશ છે કે જેમાં દુનિયાના તમામ પ્રકારના ધર્મો પાળતી પ્રજાઓ એ ભારતીય હોઈ શકે છે. અહીંની 18 ભાષાઓને તો આપણે બંધારણે માન્યતા આપી છે, બાકી ટોટલ 577 જેટલી ભાષાઓ આ દેશની અંદર બોલાય છે. આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારની ધર્મની બાબતોમાં, રીત રિવાજોની બાબતમાં, પહેરવેશની બાબતમાં, ભાષાની બાબતમાં જે વિવિધતા છે, અને એ વિવિધતાઓથી ભરેલા દેશની અંદર કોઈ એક કાયદાને દેશમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવા માટે સાવ સરળ બિલકુલ નથી. આપણું દુનિયાનું એકમાત્ર બંધારણ છે જે વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લિખિત બંધારણ છે, અને એ બંધારણની અંદર એક શબ્દની અંદર પરિવર્તન કરવો શક્ય નથી, અને શક્ય છે તો એટલું સહેલું પણ નથી. એટલે એક બિલ આપણી વચ્ચે અહીંયા પસાર થવાનું છે, અને એની પ્રોસિજર કેવી રીતે થતી હોય એનું આખું લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપણા આ બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણી વચ્ચે મૂકવાના છે. એનો સરસ મજાનો પરિચય વિદ્યાર્થીની આદિત્ય નાયર અને સુજેન બાવાની આપશે. હું બંનેને વિનંતી કરીશ કે આ મોક પાર્લામેન્ટને આપ સૌની વચ્ચે ખુલ્લી મૂકશે. Everybody is a political person. Whether you say something or you are silent, A political attitude is not whether you go to parliament. it's how you deal with your life and your surroundings. Refreshing morning to one and all present here. I, Bhavani Suzanne, And I, Aditya Nair, we welcome you all to Dr. The procedure of Parliament is Mock Parliament. the Parliament of India is the supreme legislative body, the Republic of India. It is a bicameral legislature composed of the President of India and the 2 houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The President, in his role as head of legislature, has full powers to summon and prorogue either House of Parliament or to dissolve Lok Sabha. The President can exercise these powers only upon the advice of the Prime Minister and his Union Council of Ministers. The Parliament meets at Sansad Bhavan in New Delhi. To proceed further, I humbly welcome Reverend Father Silas, respected Jignasha Man and respected Vada Sir as the judges for today's event. So now, we won't take much of your time and let's begin with the Mock Parliament. I welcome you all to the winter session of the Parliament of the year 2018-2019. We will begin the session with the oath and proclamation. I call upon Kavan Limbasia, the NCP leader, to take the oath. In which language would you like to take the oath? English. I, Kamal Limbasia, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, do swear in the name of God, solemnly affirm that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law establishment, and that I hold upon the sovereignty and integrity of India. Now, the Secretary General of the Parliament may announce the rules of the Parliament, and all the members are requested to abide by the rules to maintain the discipline of the Parliament. Rules for the Parliament are as follows. You cannot address the person directly. Any point should be raised addressing the Speaker or the Parliament as a whole. Finger pointing is not allowed. Clapping with hands is not allowed. Any point raised can be supported or opposed by tapping the desk. Abusive words are not allowed. The one that Speaker points out will only speak. Hindi and English are the only 2 languages that are allowed to be used during the session. Maximum time limit for the participant is to speak is 90 seconds. And now, we have gathered here on account of the amendment bill presented by the ruling party. So, the ruling
ruling party may present the bill. माननीय महोदय श्री, हम ये बिल प्रेजेंट करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। You may proceed. The Citizen Act 2019, number 47, 2019, an act further to amend the Citizenship Act 1955, be it enacted by Parliament in the 17th year of the Republic of India as follows. Number 1. This act may be called the Citizenship Act 2019. Number 2. It shall come into force on such date as central government may by notification in the official gazette appointment. In Citizenship Act 1955, in section 2, in subsection L, in clause B, the following provisions shall be inserted, namely, provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community सुनने की क्षमता रखिए अपक्ष पक्ष के सभ्यों को मेरा निवेदन है कि वे कृपया Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st of December 2014, who has been exempted by the central government by or under clause C of subsection 2 of section 3 of the Passport Act 1920 or from the application of provision of the Foreigner Act 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act. 3. After section A of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely, on or from the date of commencement of Citizenship Act 2019, any proceeding pending against a person under this section in respect of illegal immigration and citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him, provided that such person सुनने की क्षमता शांति रखिए, रखिए, उन्हें आपके बिल प्रश्नों के प्रेजेंट जवाब करने मिलेंगे। की बैठाइए। Provided that such person shall not be disqualified for making application for citizenship under this section, on the ground that proceeding is pending against him and the central government or authority specified by it in this behalf shall not be rejected. His application on that ground if he is otherwise found qualified for grant of citizenship under this section. Provided further, the person who makes application for citizenship under this section shall not be deprived of his rights and privileges to which he was entitled on the date of recipient of his application on the ground of making such application. Number 4. Nothing in this section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the constitution and the area covered under the inner line, notified under the Bengal Eastern 14-year Regulation 1837. In section 70 of Principal Act, the overseas citizen of India cardholder has violated any of the provision of this act or provision of any other law for time being in a force may be specified by the central government in the notification published in the official gazette or after clause the following provision shall be inserted, namely, provided that no order under this section shall be passed unless the overseas citizen of Indian cardholder has been given a reasonable opportunity of being heard. Number 5. In section 18 of the Principal Act, in section B, after clause EE, the following clause shall be inserted, namely, the condition, restriction and manner for granting certificate or registration of certificate of naturalization under section L of section 6B. In the 3rd schedule to the Principal Act, in clause D, the following provision shall be inserted, namely, provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of government in India as required under this clause shall be read at not less than 5 years in place of not less than 11 years. I would like opposition to raise if any of the questions they have. The opposing party may raise a question. Avansal ji Agrawal. Honorable Speaker and respected members of the House, on behalf of the opposition party, I would like to raise a question for the ruling party.
we think that this bill violates the Article 14 of the Constitution, which states that equality before law. And it also says that the state shall not deny any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India. And this right is available to all. तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब इंडिया में धर्म के आधार पर ही सबको आधार कार्ड मिलेगा? और हमें ये पता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों देशों में मुस्लिम्स मेजॉरिटीज में है और जो नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं वो माइनॉरिटीज में है। अगर मुस्लिम वहाँ पे शांति बनाए अगर मुस्लिम्स वहाँ पे माइनॉरिटीज होती तो सेक्युलरिज्म पर मुस्लिम्स को भारत में स्थान दिया जाता। इसीलिए इंडिया सेक्युलर था, है और रहेगा। जी, मैं रूलिंग बॉडी से यह पूछना चाहूंगी कि जो म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उन लोगों का क्या है, और मुस्लिम्स जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं जिन पर बहुत परसिक्यूशन होता है पाकिस्तान में, उनका क्या दोष है? जी बोलिए। हमारे आंकड़ों के मुताबिक हमने पिछले 5 सालों में 500 मुस्लिम्स को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से इंडिया में सिटीजनशिप दी है। उसका क्या, वो तो मुस्लिम्स है, वो हमने उसको सिटीजनशिप दी है। Honorable Speaker, I want to question the ruling party that the bill also violates the final draft of National Register of Citizens (NRC) that executes nearly 40 lakh people, because the bill would grant citizenship to all the Hindus who come to Assam from Bangladesh even after NRC had cut off in 1971. Then why this bill has been amended? ऑनरेबल स्पीकर, मैं ऑपोजिशन पार्टी को यही कहना चाहूँगा कि एनआरसी का इस बिल से कोई ताल्लुकात नहीं है। एनआरसी इस बिल से किसी भी प्रकार से ताल्लुकात नहीं रखता है। एनआरसी बिल्कुल अलग चीज़ है और ये जो बिल है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। इस बिल में ये लिखा हुआ है कि जो 6 माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो थी और उनको वहाँ बहुत प्रताड़ित किया गया था, इसलिए हम उनको भारत में लाकर उनको सिटीजनशिप देना चाहते हैं। और हम मुस्लिमों को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 3 इस्लामिक कंट्रीज है और वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटीज है। महोदया जी, जैसा कि रूलिंग पार्टी ने कहा कि ये माइनॉरिटीज के लिए बिल अमेंड किया जा रहा है, पर माइनॉरिटीज वो बता रहे हैं कि मुस्लिम्स इन स्टेट्स में मेजॉरिटी है, पर मुस्लिम्स में भी कई माइनॉरिटीज है, जैसे कि अहमदी और शिया मुस्लिम है, जिन्हें वहाँ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। उन सब का क्या? क्या इस कास्ट मेंशन करना जरूरी था या वो सिर्फ पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज लिख के इस बिल को अमेंड नहीं कर सकते थे? माननीय स्पीकर महोदय, मैं सिर्फ ऑपोजिशन को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस
आपने जो भी कम्युनिटी बताई है, मैं उससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का कोई भी मुसलमान जो माइनॉरिटी में आता है और भाइयों बहनों, उससे घबराना मत। हम देश से ताल्लुकात करेंगे, हम देश से उसके देश के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक उसका देश उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, इंडिया में उससे कोई भी रोक नहीं सकता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक माइनॉरिटी को रोक नहीं सकते। उन्हें बोलने दीजिए। हाँ मुस्तफा जी, क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इन 3 देशों के माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो इन 3 देशों के माइनॉरिटीज में जूइश भी आते हैं और एथिस्ट भी आते हैं, तो उन लोगों का क्या? और इसके अलावा जो डिबेट है जो चाइना ने ले लिया है, उनमें भी कई हिंदू को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा? पर ये वहाँ पर कभी हमारे हिंदू और वो सभी 6 लोगों का 6 कास्ट के कभी पीड़ित नहीं हुए। पर पाकिस्तान में जब 24% थे हिंदू और वो अभी बदल गए 2% में, उस लोगों का क्या? और बांग्लादेश में 2% बुद्धिज्म थे, उसमें 0% हो गए, तो उस लोगों को मार दिया है और भगा दिया है, उसका क्या? वो सभी पीड़ित नहीं हुए, यहाँ पर पीड़ित हो रहे, इसलिए हमने ये बिल का लेख लाया है। माननीय महोदया, मैं अपने फेलोमेट के साथ अग्री करके ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन हिंदूज की 24% थी, उससे वो डिक्रीज होकर 2% हो चुके हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। और अफगानिस्तान में भी बुद्धिस्ट की जो संख्या थी वो 4% थी, वो डिक्रीज होकर 0% हो गई है। इनके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि या तो उन्हें मार डाला गया है, उन्हें डेथ वारंट दिया गया है, या तो उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनका जो धर्म है वो परिवर्तन किया गया है। तो Honorable Speaker, I am convinced that the bill that the ruling party has brought is an assault on the very foundational values on the Indian Constitution. It is an assault on the Republic of India. It hurts the soul of India because it's clearly mentioned in the preamble of India that India is a secular nation. It's against our democracy. It fails the morality test. It's against our preamble which actually talks about liberty and equality. I am totally agree. Agree with my fellow mate that she said. Also, I would like to add in a point that it seeks to legally establish Muslims as second-class citizens by providing preferential treatment to other groups. So, isn't that unfair to all the other groups that like Muslims facing right now? I think it's totally unfair. अपनी बात करने दीजिए बच्चों। माननीय स्पीकर महोदय, जो मुझे पार्टी कह रही है कि मुसलमान को आज देश में क्या क्या फेस करना पड़ता है, आप यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर बना रहे हैं कि मुस्लिम भारत में बेघर पकड़ियों की तरह रह रहे हैं। उसके भी बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसे भी पूरा अधिकार है, उसके भी बच्चे आगे आते हैं। इधर पार्लियामेंट में 6 मुसलमान के लोग हैं, तो क्या हम उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि वो अलग है हमारे से? भारत में मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है।
જ્યારે refugees for ના ના 1% ઓછો થયો એટલે કરી નાખવા देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट लाइट નથી થતી કઈ કરો सबसे खराब है इस साल 6.1%। और जो अब दूसरे देशों में से हिंदू दूसरी कास्ट को यहाँ यहाँ बुला रहे हैं और उनको खाने की और घर और एजुकेशन वो कहाँ से लाएंगे? देश में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट है। और आप जो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं जिसका जो आसाम में बना रहे हैं जिसमें आप ये सभी कास्ट को जो इंक्लूड करने वाले और इंडिया में बुलाने वाले उनको रहने के लिए घर और वो सब देंगे पर उसका टोटल कॉस्ट 27,000 करोड़ है। वो कहाँ से ला रहे हैं ये लोग बता रहे हैं कि यो रेफ्यूजी को बना कैसे देंगे, लेकिन रेफ्यूजी तो इंडिया में ही है, उनको सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। वैसा नहीं है कि बाहर से लाके उसको वैसा नहीं कि उनको बाहर से लेके बना देना चाहते हैं। वो पहले से इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी में भी इतना ही हेल्प कर रहे हैं और अभी तक उनको सब कुछ लीगल नहीं था। उनकी शॉप उनको उनके मैनेजर वो सब लीगल नहीं थे, अब वो सब लीगल हो सकते हैं और उनके लिए भी इतना बेनिफिशियल रहेगा कि अपनी पहचान वो बाहर दिखा सकते हैं। I would like to add to that point that India has tried to give no status of refugees under 1951 UN Convention, 1967 Protocol. That is, it doesn't make mandatory for India to give refugee status to anybody in case of its permission. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैं रूलिंग पार्टी से ये पूछना चाहूँगा कि अचानक से इस अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ी और अगर जरूरत पड़ी है तो पिछले 5 सालों का क्या कर रहे थे? और मैं रूलिंग पार्टी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि इंडिया में ऑलरेडी जो सिटीजन्स हैं वह बहुत जॉबलेस हैं और उनके पास सिटीजनशिप है और वो होमलेस भी हैं, तो पहली प्रायोरिटी उनको क्यों नहीं चाहिए? आदरणीय महोदय जी, मैं अपने विपक्ष को जवाब देना चाहूंगा कि इस बिल की क्या जरूरत थी। इस बिल का मेन कारण था पार्टीशन। अगर पार्टीशन नहीं हुआ था तो इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे कई हिंदू भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गए थे। वहाँ उन्हें कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना की गई थी, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया था। इसीलिए हमने ये बिल पास किया था, लेकिन 2015 में यह राज्यसभा में अटक गया था। इसीलिए इसको अब पास करने की जरूरत पड़ी। मैं मेरे फेलो फ्रेंड से सहमत हूँ और मैं उसका बोलना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस से जब पार्टीशन हुई थी तब नहीं बोला होता, जाति में भेदभाव नहीं किए होते तो इस बिल को यहाँ पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग उस टाइम पे जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो मुस्लिम को कोई राइट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लोग आप ये सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्ना ने वो 2 थियरी दी थी कि मुस्लिम एक हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र एक नहीं हो सकता। अगर महात्मा गांधी जी ने ध्यान दी नथुराम गोडसे की बुलेट खाई तो क्यों खाई? इसलिए खाई कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ है। आपकी बात मैं अपने विपक्ष
अरे बच्चे साइड टू साइड स्टूडेंट बैठा हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज भारत का इतिहास देखिए, कितने मुसलमान राजाओं ने भारत का शासन किया, फिर भी आज भारत में हिंदू है। मुसलमान राजाओं ने 774 वर्ष तक भारत में राज किया और भारत को इस देश में आए हुए से 100 वर्ष ही हुए हैं और हम मुसलमानों को इस देश से हटाने की बात करते हैं। क्या इतनी वीक हुए हैं हमारी सोच? और अगर हम इस तरह से फ्री में इन 3 देशों के 6 माइनॉरिटीज को अगर हम इस तरह से फ्री में 5 साल के अंदर सिटीजनशिप बांट रहे हैं तो फिर ज्यादा लोग आएंगे उन देशों से और फिर हमारे जो देश के रिसोर्सेज है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा। और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो टेररिस्ट उनको तो सिर्फ एफिडेविट में अपना रिलीजन बदलना है कि मैं हिंदू और उनको उस तरीके से आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी और उससे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। ऑनरेबल स्पीकर, सबसे पहले जो ऑपोजिशन ने कहा कि हम मुस्लिमों को निकालने की बात करें, तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम मुस्लिमों को निकाल ही नहीं रहे। जो मुस्लिम पहले से नागरिक बने हैं उनकी सिटीजनशिप के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा रही है। जो इन 3 देश का हमने जो मेंशन किए हैं उन 3 देशों में से ही सिर्फ जो 6 माइनॉरिटीज हैं वो आने वाली हैं। और हमने पहले भी बताया है कि मुस्लिमों को हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन 3 देशों में मुस्लिम मेजॉरिटीज हैं। और हमारे ऑपोजिशन ने ये भी कहा कि रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, पर हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारे ही भाई हैं और अब धर्म में डिस्क्रिमिनेशन ऑपोजिशन कर रही है। ये हमारे ही भाई बंधु हैं और हम इनसे इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मैं रूलिंग पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि ये लोग कह रहे हैं कि वो निकाल नहीं रहे, पर ये लोग ये भी नहीं कह रहे कि वो ला भी नहीं रहे। मुसलमान क्या मुसलमान हमारा भाई नहीं है? मैं थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर, मैं रूलिंग पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ऐसे ही किसी माइनॉरिटीज को लाते रहे और हमारे देश में ही हमारे अभी कितने सारे गरीब हैं उनका उद्धार करने की बजाय वो दूसरों को लाते रहे तो हमारे देश का क्या होगा? लेकिन अभी हम लोग लाने की बात नहीं कर रहे बाहर से, जो यहाँ पे है जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, जैसा कि लोग यहाँ पे उनको सिटीजनशिप देने की बात हो रही है, बाहर से आए उनको नहीं देने की बात हो रही है। तो क्या रूलिंग पार्टी यह संबोधित करना चाहती है कि मनुष्य इलीगल है? मैं ऑपोजिशन का जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर का मुसलमान यहाँ आ सकता है, लेकिन उसके पास लीगल ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो तो तभी वो यहाँ आ सकता है। और पहले मुसलमान को यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए 11 साल लगते थे, जिसको हमने घटा के 6 साल बढ़ा दिया, 6 साल बना दिया। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? मैं यही बात रखना चाहूँगा कि जब दूसरे देश अमेरिका लंदन जैसे नागरिकता पर सख्त कायदे लगा
प्रूफ करनी पड़ेगी। तो कहाँ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? वो हमारे सोल्जर जो सर्व कर रहे हैं इंडिया के लिए, उन पर ही तो सवाल उठाता है। विपक्ष ने कहा कि कारगिल वॉर के दौरान जो हमारे चीफ कमांडर थे उसको भी सिटीजन को करनी पड़ी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ तब आपके भी पुराने नेता वहाँ पर राज कर रहे थे, उसकी पार्टी थी और आपकी पार्टी थी, इसलिए आपकी पार्टी में भेदभाव है, यहाँ पर मत बोलिए। अगर आप कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो अपना हाथ ठीक से ऊंचा कीजिए। आस्था। और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि तो फिर ऑपोजिशन वालों ने युगांडा और श्रीलंका के रेफ्यूजीज को आने ही क्यों दिया? थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। जैसे कि माननीय होम मिनिस्टर ने कहा कि जो इंडिया में है उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी, पर जो बिल है उसमें लिखा गया है कि जो 31 दिसंबर से पहले जो इंडिया में आएंगे माइनॉरिटीज उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आएंगे उनके लिए है। अभी आपने बताया कि जो रेफ्यूजी 31 दिसंबर को और उसके बाद है उन सबको सिटीजनशिप मिलेगी। हम क्या पॉइंट से घूम रहे हैं यहाँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, क्या देश में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ये सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 कंट्रीज में से 102nd कंट्री पे, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। ये लोग सिटीजनशिप ऐसे ही बांटते रहेंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि चलो इंडिया में आओ, इंडिया की टॉफी खाओ और इंडिया के फायदे उठाओ। यहाँ की टॉफी खाओ, यहाँ की सिटीजनशिप। टॉफी खाना मतलब उसका फायदा उठाना नहीं है, उसे चबा के फूंक दो नहीं, उसको चबाओ और उसका स्वाद लेना है। ऑनरेबल स्पीकर, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो मुस्लिम्स आए हैं उन्हीं को नागरिकता देनी है। इसका कारण ये है कि जो पहले 1955 सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक 11 साल तक कोई भी इंसान को रहना पड़ता था भारत में सिटीजनशिप के लिए, वो अब घटाकर 6 साल तक कर दिया गया है। इसलिए 31 दिसंबर 2014 से पहले नागरिकता देनी है जो आए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो 6 माइनॉरिटीज हैं वो इन 3 देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इनको एक्यूज किया जा रहा है, इसलिए हम इनको नागरिकता देना चाहते हैं भारत में, क्योंकि उनको भी भारत में नागरिकता का समान अधिकार है। जो मेरे स्वामी ने कहा बहुत सही कहा कि जो 31 दिसंबर 2014 को जो इधर आए हैं उसे ही नागरिकता मिल रही है। अगर आप समझिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उसके जो लेडीज है, घर की औरत है, वो बाहर निकल नहीं पाई है, उसको खींच उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो खेतीबाड़ी के काम है, जो पंजाबी लोग है, जो हिंदू है, वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उसका भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो उसके जो पाक हुआ थे, जो वेजिटेबल और सब खेतीबाड़ी में लगाते थे, उसका पाक कोई ले नहीं रहा है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का हो रहा है। हम क्या उसकी मदद नहीं कर रहे? क्या हमारा इंडिया का संविधान इससे नीचे गिर गया है कि जो हमारे भाई है वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ बरसों से रह रहे हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा और हम यहाँ भी उसकी मदद नहीं करें? ऐसा इंडिया अभी कमजोर नहीं हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि जो वहाँ पे रह रहे हैं उसकी मदद भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी। अभी आप जो कह रहे हैं कि उन लोगों को हम यहाँ पर लाएंगे और पहले आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उनको आप सिटीजनशिप देंगे, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे। आप पहले कह रहे थे कि वो जो लोग यहाँ पर है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और अभी आप बात कर
लेकिन इस बिल में ऑन पर्पस मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया है। इससे वर्ल्ड में हमारी क्या रेपुटेशन रेस आएगी? इंडिया की जो अब तक सेक्युलर रेपुटेशन है वो गिरकर कचरा हो जाएगी और हमारा देश भी पाकिस्तान के रेपुटेशन के लेवल पर गिर जाएगा। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसकी बात मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो कहा कि वो बाहर से जो आ रहे हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं और अंदर से सेफ है, मतलब ये बात है कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज के कह रहे हैं। वो क्यों परसिपिटेड माइनॉरिटीज ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिख, जैन, ईसाई ये सब आएंगे। क्या ये सब में भी रेफ्यूजीज नहीं होते? सिर्फ मुसलमान में ही रेफ्यूजीज नहीं होते? माननीय महोदय, मैं अपने विपक्ष के जो भाई हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग अपने देश की रेपुटेशन कर रहे हैं। जहाँ भी हमें पता है कि देश जैसे कि अमेरिका, यूएस, वहाँ पे अगर आप एक दिन भी ज्यादा रहे तो वहाँ पे आपकी नागरिकता कैंसिल की जाती है, वहाँ पे आपको पकड़ के जेल हो सकती है। तो उसकी रेपुटेशन को अच्छी लगती है और जहाँ पे आप ये कायदा बना है तो वो भारत के संविधान के लिए बहुत सुरक्षित है। तो ये तो आप लोग देख नहीं रहे। जय जी। आदरणीय स्पीकर जी, हालांकि हमारे देश के रेपुटेशन की बात हो रही है। 8 अप्रैल 1950 में जवाहर लियाकत अली समझौता हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया गया था कि जो हिंदू, जो मुसलमान और सिख माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया में है, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हमने अपनी बात मानी, अपन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने 6 कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया और उन्हें मजदूरों की लेबरर्स की तरह ट्रीट किया। इसका क्या जवाब देना चाहिए? ऑनरेबल स्पीकर, मैं अपने फेलो मेट की बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू पार्टीशन के वक्त गए थे उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनकी जो जनसंख्या जो थी, जो यहाँ से पाकिस्तान गई थी, हिंदुओं की जो संख्या थी वो उसमें बहुत घटाव आया है। मैं बताना चाहूँगा कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 92 मिलियन Muslim people in India, but in India it has increased to 201 million Muslim people. जो यहाँ पे जो मुस्लिम पीपल जो पार्टीशन के वक्त थे वो 92 मिलियन थे और अब बढ़कर 201 मिलियन हो चुके हैं। यही अब अगर हिंदू जो पाकिस्तान में गए उनकी बात करें तो वो उस वक्त 12.9% थे, पर अब घटकर सिर्फ 1.85% रह चुके हैं। तो इसका क्या जवाब है? अगर विपक्ष बात करता है देशों की जैसे कि अमेरिका, रशिया, यूरोप, तो उन देशों की जो सेक्युलर रेपुटेशन है वो बहुत हाई है और जिन देशों में झगड़े होते हैं जैसे कि इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनमें कहीं ना कहीं धर्मों के नाम पर भेदभाव हो रहे हैं। उनमें मुसलमान उनको डिफाइन किया जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आधार पर, इसीलिए उनमें जो दंगे हो रहे हैं, इसलिए सेक्युलरिज्म यहाँ पे सेक्युलरिज्म जो है वो मेंटेन करना चाहिए। जैसे ये माननीय महोदय जी, जैसे इन लोगों के जैसे रूलिंग पार्टी ने कहा कि यूएसए, रशिया सारे में एक दिन से ज्यादा रहते हैं तो उन लोगों को बाहर के खींच के निकाल जाता है, लेकिन उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और वो तो देखिए, वो सब में टॉप में आते हैं और हम कहाँ पे आते हैं? पाकिस्तान से भी नीचे आते हैं। और अगर इस बात से हम सोच मुखर है तो इंडिया की कोई इंटरनेशनल वैल्यू ही गिनी नहीं जा सकती, तो आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल की क्या बात कर सकते हो?
थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैं इनकी बात को सपोर्ट करने के लिए कहना चाहूँगा कि इंडिया की जीडीपी रेट अभी बहुत गिरी हुई है। According to Business Today, it reports that there has been a 6-year quarter decline in GDP growth, which is the largest span in 23 years. तो अभी इंडिया की जीडीपी की हालत दिल्ली पोल्यूशन से भी खराब है। तो इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? This bill also violates the provision of a secular and fundamental rights, directive principles and fundamental duties of the Constitution. Then what the ruling party has to say about this? I want to support my country, saying that the citizenship amendment bill is nothing but a slap on the face of the parliament. They are asked to do something they are asked to do something which is unconstitutional and pass on to the judiciary. जैसे कि वर्षा जी ने कहा कि हमारी जीडीपी बहुत गिरी हुई है, अभी गिरी हुई है, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी 2 वर्ष के लिए कंटिन्यूअस थी, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के आने से एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे देश में, और एम्प्लॉयमेंट से हमारी जीडीपी का विकास होगा, हमारी इकोनॉमी फिर से आगे आएगी। जैसे कि ओपोजिशन पार्टी आसाम और वो सब की बात कर रहे हैं, आसाम में मैंने खुद जाके कमेटी बनाई है उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की। वहाँ 50 सालों से आप काम कर रहे थे, तो तभी आपको ख्याल नहीं आया कि 50 साल से हम वो कर सकते हैं। अभी तो उन आसाम के लोगों की कल्चर और उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व करने के लिए कोई भी कमेटी और वो सब कुछ था ही नहीं। माननीय महोदय श्री, जैसे कि विपक्ष ने कहा कि एक स्लैब है पार्लियामेंट में, तो मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ 18 दिसंबर 2003 में उसके एक दिग्गज नेता ने इस सिटीजनशिप बिल को लाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और इसका क्या है वो स्टेज नहीं है, आप ऐसे ही वापस कर रहे हैं। माननीय महोदय श्री, मैं ऑपोजिशन से कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे बैठे हो पहले सोच लीजिए। आप पार्लियामेंट में बैठे, आप देश के विकास के लिए बैठे, और आप अपनी देश का खराब बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो रशिया से कंपेयर कर रहे हैं, इंग्लैंड से कंपेयर कर रहे हैं, जर्मनी से कंपेयर कर रहे हैं। अरे पहले आप इनके साथ ही सब लोग साथ मिलकर होगा तो सबका विकास होगा। वहाँ पे अपने देश को विकास नहीं बोल रहे, तो आप साथ में मिलकर हमारे साथ काम कीजिए ना। आप अपने देश को क्यों नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं? शांति बनाए रखें। और रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से लेकर बांग्लादेश से भारत में आते हैं, और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि रोहिंग्या मुसलमान को कभी भारत में जगह नहीं मिल सकती। जो लोग आप कह रहे हैं कि सिटीजनशिप देंगे, अगर जो लोग टेररिस्ट और यहाँ पर आसाम और नॉर्दर्न ईस्ट में रह रहे हैं जिनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है, अगर ये बिल पास हुआ तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और वो हमारे जीडीपी ग्रोथ और उस पर भी असर कर सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमी को नीचा दिखाता है, और टेररिज्म यहाँ पर शुरू हो जाता है अगर वो सिटीजनशिप उनको मिल जाती है।
मिक्स माइनॉरिटीज को हमारे देश में रखना चाहते हैं, पर ये लोग एक ही सवाल, मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, मैं इनका जवाब दूंगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया कि ये सिर्फ इस्लाम धर्म को पालेंगे। इसीलिए जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और लोग शहीद हैं, उनको ट्रीट नहीं और टॉर्चर किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसीलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर टॉफी खानी है तो उसे थूकिए मत, निकल लीजिए और सख्त कड़वा नहीं लगेगा क्योंकि हमने टॉफियां खाई। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की कि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, पर हमारे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, उनका क्या? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है, तो कम नहीं है। और माननीय मोदी जी ने नेता की बात की, किसी नेता, हमारा नेता जो उनके साथ मैं बात करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता कानून को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट होगा। और इसमें एनडीए जो कि उसकी रूलिंग पार्टी है, उसके भी नेता का सपोर्ट है। अगर माननीय होम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने आसाम में कमेटी बनाई है ट्राइबल जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की, लेकिन इस करप्शन के बीच क्या वो कमेटी ठीक से काम कर पाएगी? और मैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि जो भी रेफ्यूजीज को अपने इंडिया में बुला रहे और जो भी मुसलमानों को आप नहीं ले रहे, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि वो सभी हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं, वो सभी मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होंगे? क्या वो गारंटी देना चाहते हैं आप? जैसे कि अपोक्स के मेंबर ने कहा कि वो उसकी क्या गारंटी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के संविधान के तहत और लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तहत उन सभी को यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी और मुस्लिम्स को उनके प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के तहत ही उनको यहाँ सिटीजनशिप दी जाएगी। और हमने कहा है कि ये रेफ्यूजीज सब नहीं उन लोगों को ही नहीं सिटीजनशिप मिलेगी जो लोग हमारी इंडिया की पीस को डिस्टर्ब करें। उसमें हम लोग ने ऐसा कभी नहीं मेंशन किया कि वो हिंदू होंगे या वो मुस्लिम होंगे या वो सिख होंगे या ईसाई होंगे। हमने अभी हमने इससे ये बोला ही नहीं है। तो फिर मुस्लिमों को क्यों डायरेक्ट सवाल ना पूछिए। ये लोग सिर्फ बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं किया, मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं किया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि छह कम्युनिटी ने हमने उनको इंक्लूड किया, उनका कोई एप्रिसिएशन मिलता नहीं है और सिर्फ एक मुस्लिम को इंक्लूड ना किया, उन पे आप सवाल उठा रहे हो। और जो आप कह रहे हो कि मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया, पार्टीशन के वक्त ही हमने ये कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा था कि ये पाकिस्तान देश है वो इस्लामिक स्टेट है और ये इंडियन स्टेट है वो हिंदुइज्म स्टेट है, तो हम अपने ही भाई को क्यों पनाह नहीं दे सकते? और आप सवाल उठा रहे हो कि मुस्लिम को हमने माइनॉरिटी नहीं दी। अभी रूलिंग पार्टी कहती है कि सिर्फ 6 कम्युनिटी को ही हम बना दे रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? लेकिन मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आई एम प्राउड दैट वी बिलोंग टू अ नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड एंड परसिक्यूटेड द रेफ्यूजीज ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड ऑल नेशंस ऑन अर्थ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का क्वेश्चन एक ही है कि क्यों मुस्लिम नहीं, तो इसका ये जवाब है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, तीनों देशों का यही कहना है। वो लोगों ने बोला भी है कि हमारा देश इस्लामिक है और वो लोग हिंदू या फिर जो दूसरे जो रिलीजन है उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या हमारे फर्ज नहीं बनता कि हम उनको प्रोटेक्ट करें?
ऑनरेबल स्पीकर, जैसा मेरे फेलोमेट ने कहा कि हम मुस्लिमों को ऐड नहीं कर रहे, हमने पहले एक बार मुस्लिमों को ऐड किया था। जैसा होम मिनिस्टर ने कहा कि पार्टीशन के वक्त हमने नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ था, जो न्यू दिल्ली में साइन हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, और वो पैक्ट के हिसाब से जो भी रेफ्यूजीज थे उनको दोनों में से कोई भी कंट्रीज चुनने का अधिकार था, और दोनों कंट्रीज की जिम्मेदारी होगी जो भी रेफ्यूजीज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे। पर हमें क्या देखने मिला कि भारत से जो हिंदू पाकिस्तान में गए उनकी जो संख्या थी वो घट गई, और यहाँ मुस्लिम जो आए उनकी संख्या बढ़ गई है। और यहाँ पे ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जहाँ पे मुस्लिम अभी तक नहीं आए हो। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अच्छे इंजीनियर्स है, सेलिब्रिटीज है, सिंगर्स है, आप जो भी चीज का नाम ले लो, सभी जगह पे मुस्लिमों का भी दबदबा रहा हुआ है। मैं कब से सुन रहा हूँ कि मुस्लिम बात हो रही है, दूसरे देशों में हमारे भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, पर अभी जो हम सिचुएशन देखें तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में आए हैं उनके लिए ये दिन है। तो अभी तो वो ठीक से रह रहे हैं शांति से इंडिया में, तो इसकी जगह किसी ऐसे रोजगारी के लिए कोई बिल अच्छा सा पास किया तो कितना अच्छा है। इससे तो ऐसा लगता है कि रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, पर हम सब तो साइड के कंकड़ उठाने में लगे। ये बात कर रहे हैं कि साइड के कंकड़, रोड के साइड के कंकड़ उठाने में लगे, पर जो रेफ्यूजीज रह रहे थे वहाँ पे उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके लिए कोई राइट नहीं था, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। उनके लिए अब जो हो गया, राइट मिल रहा है, प्रोविजन मिल रहा है, और उनको अपनी सिटीजनशिप मिल रही है इस कंट्री में, उसका क्या? अभी तक वो किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं पहचाने जा रहे थे। तो क्या रूलिंग पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज है उनका बहुत भला हो रहा है? Honorable Speaker, I would like to present the current situation. And the current situation is, the project Hindu Rashtra is gaining speed and the RSS is watching with great interest. But the only surprise is that the ruling party is pushing its agenda so quickly after the massive election victory. Criminalization of triple talaq, the National Register of NRC exercise in Assam, the repeal of Article 370 in the Constitution, and now the passage of Citizenship Amendment are part of an elaborate plan to advance Project Hindu Rashtra for achieving their selfish motives. तो उन लोगों को क्या, जो आप लोग कह रहे हैं कि सिटीजनशिप मिल सकती है वो हिंदू को और अदर माइनॉरिटीज को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं। वो लोग अभी कितने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर वो लोग उनके साथ मिले हैं, तो अगर वो यहाँ पर आएंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लोग यहाँ की GDP को बढ़ाएंगे। और अगर इन्होंने हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इन 6 माइनॉरिटीज को बिल में शामिल किया, तो उन्होंने जो अदर प्रोसेक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जैसे कि ज्यूइश, एथिस्ट, शियास और अहमदियास, उनको क्यों बिल में शामिल नहीं किया? माननीय महोदय स्पीकर जी, कब से रूलिंग पार्टी कह रहे हैं कि आप मुस्लिम पर ही अड़े हैं, मुस्लिम पर ही अड़े हैं, लेकिन इन लोगों ने जो 6 कास्ट है, मतलब 6 कास्ट को इम्प्लीमेंट किया है, जैन क्रिश्चियन, सिख, और घर को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, वो बाहर से बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे?
कोई चीज की गारंटी नहीं होती। आप खाने से पहले क्या कहते थे कि हजम हो जाएगा, नहीं गारंटी ले सकते। अगर वो लोग ऐसा कुछ कार्य करते तो उसकी भी सिटीजनशिप रद्द करने में तुले, उसका भी इंडिया में संविधान बनेगा, उसका भी कानून बनेगा, तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए आप वो मत बताइए कि गारंटी कौन लेगा, गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो फिर हम भी आपके वादों की गारंटी क्यों ले? The Citizen Amendment Bill has been amended 5 times before in 1986, 1992, 2003, 2005 and 2015. Then again, why the ruling party want to amend it? This is only for their personal gains and for the votes of the people. हाँ तो हमने कहाँ पर कहा कि अब तो हम गारंटी लोग हमारे वायदे की, हमको पब्लिक ने चुना है 5 साल के लिए और अपना कायदा बना सकते हैं और इस देश की भलाई के लिए हमने कायदा बनाया। आपकी विचारधारा एक तरफ है, तो देश को गुमराह करने की विचारधारा है। मुझे नाम लेने का मजबूर ना करो। Yeah, 32. अगर 5 बार ये कायदा आ चुका है तो आपकी सत्ता 5 साल के लिए यहाँ पर चुनी गई है, तो आप लोग दूसरे विषय पर क्यों नहीं करते? क्यों ये 5 बार आने के बाद भी यहाँ पर कर रहे मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत है, क्योंकि भारत में से वोट नहीं मिल रहे, वो बाहर से वोट लाने की बात कर रहे हैं। I would like to tell the opposition party that we make laws according to the situation and seeing the time and the situation and not in a fluke. They were saying that the span of the terrorism of India is spreading more and more. That is why we हमारी 6 माइनॉरिटीज वहाँ पर रही थी, उन्हें बहुत झेलना पड़ा था। अगर आपके भाई बहन वहाँ पर जाके रह रहे और झेल रहे, तब आपसे शर्म नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पे भाई, अगर आपका भाई यहाँ पर काम कर रहा है तो उसे वहाँ पर छुड़ा के यहाँ लाना ही होगा। हमारे वोट का सवाल नहीं है, और अगर हमारे देश का फूल बांधना है तो छोटे कंट्रोलों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑनरेबल स्पीकर, सबसे पहली बात मैं ऑपोजिशन की ये क्लियर कर दूं कि हम बाहर से नहीं ला रहे हैं। जो देश में है, जो 2014 31 दिसंबर से पहले जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हीं को हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि हम हमारे सेल्फिश मोटिव्स की वजह से हम ये कर रहे हैं, पर इलेक्शन अभी खत्म हुआ है 6 महीने पहले, और अब इलेक्शन 4.5 साल बाद है, तो हम हमारे कोई भी सेल्फिश मोटिव्स के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। एक और रूलिंग पार्टी कह रही है कि हमारे भाई जो दूसरे देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, और एक और वही कह रही है कि जो इंडिया में आ गए और बाहर नहीं गए, तो उसका कंफ्यूजन क्या है? प्लीज हमें बताएं, क्या हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं और खुद भी कंफ्यूज। जी, मैं कब से वो चीज रूलिंग पार्टी की तरफ से सुन रही हूँ कि ऑपोजिशन पार्टी बहुत मुसलमान कर रही है। मुझे उनको जवाब देना है। अहमदिया मुसलमान लोग पर बहुत अत्याचार होता है, मुसलमान लोग पर पाकिस्तान में। वह भी टू नेशन थियरी से पहले हमारे भाई ही थे, तो उन लोगों का क्या कसूर है? यह मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, और जो भविष्य में सेक्युलरिज्म को मिटाने का कलंक लगेगा हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको नहीं होना चाहते हैं। Modi ji, they were telling
still it was brought to the Rajya Sabha again. But in 2015, we only presented in the standing committee. So in the election before 2015, we told that we will come and pass both the bills of NCR and this Citizen Amendment Act. So we have completed both our things, and still in the next 4.5 years we are going to complete our things. Not like you that, not like the other parties that they make the promises and आदरणीय स्पीकर जी, जैसे कि ऑपोजिशन वालों ने कहा कि वहाँ पर धर्मीय मुसलमानों को वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो किन बेसिस पर कह रहे हैं कि वो हमारे भाई थे। वो उन कंट्रीज की प्रॉब्लम है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इस्लामिक है और उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए हमारे देश में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर बात करते हैं प्रॉमिसेस की। आपने तो कितने ही प्रॉमिसेस किए हैं कि भारत में रोजगार होगा, आज भी कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रूलिंग पार्टी पावर में तो आती है लेकिन समझ में नहीं आती। ये बोल रहे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं कि दूसरे देश में हमारे भाई हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें यहाँ पे लाना चाहिए, कि हमें इस बात से कुछ नहीं होना चाहिए। और एक तरह से बोल रहे हैं कि ये उन देश की आपसी प्रॉब्लम है, इससे हमें क्या है। मैं अपने विपक्ष को ये जवाब देना चाहूंगी कि ये लोग बोल रहे हैं, इनमें से एक ने बोला कि हमारी रूलिंग पार्टी बौखला गई है। तो अगर हमें बौखलाना होता, अगर हमें करप्शन करना होता तो हम गुलामी नामों से अगर हमें करप्शन करना ही होता है, अगर हमें अच्छा नहीं सोचना होता, तो हम क्या 2000 वाली नोटों से नहीं कर सकते थे? मुझे नाम लेने पे मजबूर ना करें आपके। माननीय स्पीकर जी, जैसे रूलिंग पार्टी ने कहा कि आप क्या गारंटी ले सकते हैं कि खाने के पहले हजम हो जाएगा, तो खाना ही ऐसा खाए ना कि वो हजम हो जाए। तो खुद के रेफ्यूजी को खुद सपोर्ट कीजिए ना। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम एक ही मुद्दे यानी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ की सिचुएशन है उसके आधार पर एक्शन ले रहे हैं। तो वहाँ पुअर्टी कितने सालों से यहाँ पर है, वो सिचुएशन है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं करते? अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके हिसाब से आप क्यों नहीं Honorable Speaker, I would dare the opposition party to give Indian citizenship to Pakistan citizens and bring back Article 370 in JK and Ladakh if they have the guts to do it. Because we did this act when they were opposing party only, and they were in our favor to pass the acts that they are saying that those acts which we passed, that they supported us to pass the acts, are not legal now. अभी रूलिंग पार्टी ने कंकर और पेट्रियोटिज्म की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंकर से पुल बने हैं, पर उस कंकर में मुसलमानों को भी शामिल कीजिए। और पेट्रियोटिज्म की बात कहना चाहूँगा कि हम पेट्रियोटिज्म भी अपना रहे और साथ में सेक्युलरिज्म भी अपना रहे, इसलिए हम मुसलमानों की इतनी फिक्र करें। चढ़ाई दिया में Honorable Speaker, I would like to say that due to this bill promotes illegal immigration, and so terrorists and intelligent people from intelligent agencies from other countries may come to India and spy on us. And this, according to Deccan Herald, Raw says that enemies may use Citizen Amendment Bill to push around people. राइट कर स्क्रीन बंद थे की जैसे कि विपक्ष ने कहा कि मुस्लिम को यहाँ पर रखने का ही है, आप बिल में भी देख लीजिए, हमने कहा कि भारत मुस्लिम
तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनको वापस इस्लामिक स्टेट भेजने के लिए? महोदय जी, इनके बिल के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन जो लोग अभी पीड़ित हो रहे हैं, जो लोग अभी नुकसान में हैं, उन लोगों का क्या? He said, I like Gandhi, but he has left something bad, that is indiscipline. And it was a necessity those days when he was fighting with a foreign power. But now India needs a disciplinary approach which will enhance the development of our country. Today, while we are watching this mock parliament, you might have seen the pattern of behavior. Tomorrow we are going to be there. It is the discipline that gives right judgment, right evaluation, a right way of putting the fact. Yes, there was a need when we were fighting for the freedom of our country. Indisciplinary behavior, because we were fighting with a foreign power. Now we are fighting for our own development, and there must be healthy exchange of our opinion, our suggestions, our understanding. Even in this mock parliament, I could see you must note down the points with the other party talks, and based on those points you must start arguing, and also you must present valuable documents or reference. That is the healthy way of putting our points before the forum, before the table. So I think that was lacking a little bit of in this discussion. Otherwise, it went on well, and I could see more discipline in the mock parliament, and I congratulate each one of you for such a emotional involvement as well as beautiful presentation. And I can see a few in the future, maybe in the real parliament. I wish when you are in the real parliament, be a disciplinarian and a disciplined person and knowledgeable person who present facts and knowledge before the group, so that we may have a healthy exchange of knowledge, healthy exchange of our opinion, and the result of it will be beneficial for the whole society. So once again, I take this opportunity because it was a beautiful experience, and I congratulate all the staff members, and especially the house which has taken the responsibility and the decorations, the setup, and I also congratulate all the students for your patient listening, and thank you, may God bless each one of you. Or to advocate social or political change. I hope our students have been able to portray the proceedings of the Parliament well, and at the same time, the audience had a large experience of it. Hope those more
of our democratic country. I would also like to congratulate all the participants for their hard work within a short period of time. Therefore, not to further hold your curiosity, I shall now call upon Vada sir to announce the winners of the competition. Vada sir, please. એ ખૂબ જ સક્સેસફુલ ઇવેન્ટને આપણે આજે માણી. ખૂબ આનંદ થયો કે બહુ જ ઓછા સમયની અંદર તમે આ એક બિલ માટે આટલું સરસ એના રિલેટેડ રિસર્ચ પણ કર્યું છે અને મોક પાર્લામેન્ટને કદાચ અહીંયા મૂકવા માટે તમે ઓરિજિનલ પાર્લામેન્ટને ઘણીવાર જોઈ પણ હશે. ત્યારે તમને એમ થયું હશે કે આ પાર્લામેન્ટ જેવી જ કદાચ ડિસિપ્લિન ઓરિજિનલ પાર્લામેન્ટમાં હોય તો કેવું સારું હોય. બની શકે આપણો વિડીયો ક્લિપ આપણે મોકલીને કદાચ આપણે પ્રેરણા પણ આપી શકીએ કે આ પ્રકારની પાર્લામેન્ટ જો બને તો આપ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો. ખૂબ સરસ. સૌથી પહેલાં તમામ પાર્ટિસિપેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સને અભિનંદન આપીએ કે આપ સૌ